घर है वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने उसका दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रोथल चलता था कोठा, वो लेके आते हैं बड़ा सा संबल जिससे दरवाज़ा सीधे टूट जाता है, वही किया इन्होंने। पुलिस वाला आगे बाहर बिन चेक कर रहा है। आई थिंक इट्स अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पुलिस के पास नहीं गया कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2.5 घंटे हो गए और अभी तक इनकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई है। तो है गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग पे। तो सीन ऐसा है कि मैं और मेरा दोस्त अभी जस्ट जिम के लिए निकल रहे थे और मेरे जो घर के आगे जो घर है वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने उसका दरवाज़ा तोड़ दिया। बहुत तेज़ हल्ला हुआ, बट मुझे नहीं पता, मतलब हम लोग तो शॉक हो गए कि हुआ क्या है, ऐसा क्या सीन हो गया। तो हम बाहर गए तो देखा कि मतलब 2 पुलिस वाले की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पहले तो कहीं और लगी हुई थी, बाद में इधर लगी। तो सीन ये है कि शायद ये लोग ड्रग डीलिंग का काम करते हैं, ये कुछ लड़कियां हैं या पता नहीं ब्रोथल है इनका। गाइस अभी जस्ट हमारे घर के सामने पुलिस आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रोथल चलता था कोठा, किसी ने कंप्लेन करी है, अब अरेस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा यार बंदर आ गया, क्या हुआ? मैंने कहा भटा भट मेरे को लगा कोई चोरी करने आया, वर्दी पकड़ लिया किसी ने। वो लेके आते हैं बड़ा सा संबल जिससे दरवाज़ा सीधे टूट जाता है, वही किया इन्होंने। वो भी आ गया, जा रहा है वो पुलिस वाला आगे बाहर बिन चेक कर रहा है। आगे इनकी गाड़ी यहाँ पर, पुलिस वाला अभी सब चीज़ें निकाल रहा है। अंकल से बात कर लेते हैं। आई थिंक इट्स अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। Well, व्हाट डू यू थिंक? well, they got done for drugs a few years ago, ओह रियली? and they disconnected everything. But then it came back on about 3 months later, and the girls came back. So it's a drug case, not a brothel? Maybe they're just checking for drugs. I don't know. Because there were at least 5 or 6 police officers. He just arrived. No, they parked behind there. So they didn't park anywhere. They just parked there. Oh, okay. It's undercover. Because Bonnie next door, Yeah. she's reported them years ago, a number of times about the drug situation. And even myself, I spoke to one police officer at a function that the council were putting on, and they were there, the cops. And I asked him about it, and he said to me, he said, "Look," he said, "I know what you're up against." He said, "We've got a problem with the drugs, is that you've got to catch them." And we find sometimes, whatever reasons, that we get around, suddenly know there's a cop's car and they take off over back vans and they run. So it's a chase on. He said, "Look, best thing for you to do is to keep He must be very taking happy. their number, He must be very happy in Australian Day. take their number of their plate and give it to the council or give it to whoever you do." But I said, "You got to be joking." I said, "If someone walks in there that's 6 foot fucking tall, weighs 200 quid, I'll get belted and I'll touching his car to put a note on it." He's very happy. He looks very happy. Happy Australian Day. There is another car. Never. हमारे नेबर आ रहे हैं अभी। Boys, what you gonna do? Bad boys gonna get you. Hey, Happy Australian Day. this is what? A couple of year recurrence? Oh, Go after the guy that owns the house. there's 2 cars. Yeah. The guy owns the house, he puts them in there. Hey. Tell me, I haven't heard Butchie for a while. Really took We a put him haircut. down on the 3rd of December. Okay. He was, Yeah, losing it. no, he was stiff and he was blind and he was walking around in circles. He wasn't Everything losing it, he was was still collapsing. quite, And quite hello, strong. yes, But in the so end, Yeah, I haven't heard him. no, no, with us, well, it he was stopped very barking. sad and he needed to He go. didn't have a bark. It was Yeah, when it goes. 18, 20 Oh, years see that thing. That's cool. No, So you get up of a night time and you walk around the house and it's pitch black and he gets caught. Yeah. it He was won't heading bark, to corner and but you hear a little, he's caught, he gives you this. Yeah. So I'm looking for the sound. No, we had to, Right. If one of the dicks comes over and I says, what's going on? well, remember the last time? Yeah. Oh yeah. And when the guy came home and says, "Oh, who was living in this house?" And he says, "Well, he looked like you, Asian, about this time." And I You said to the police officer. Yeah, He looked like you. Hey, he got upset. He
got pissed off. I says, well, what did he look like? Yeah, well, he was about your height. Looked like you. And in the story, he got upset. I got scared when I heard that both they were just bashing that thing. I was thinking, I was expecting a kangaroo. No. I reckon the power Don't come I here, reckon don't come here. where they come because you see So you you're see going too many guys just We were rock going up out for and then go. gym. They're gone with us. Yeah, we were ready to go for a gym, and then this happened. Well, something interesting on Australia Day. Well, they picked a good day. All right, guys. See ya. Have a good day, guys. बट एक चीज़ है कॉमन, मतलब पड़ोसियों ने पुलिस से पूछा नहीं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करा ना उसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कैसे आ गए। अपने इंडिया में होता तो साला पहुँच जाते हैं वहाँ लोग। क्यों, क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, मसला क्या हो गया, बताओ हमें। यहाँ पुलिस को अपना काम तो करने दिया जा रहा है कम से कम। आगे आए हैं वो, एक आगे गए, पीछे गए बंदा उसके फ्रेंड्स को पीछे से भी गया था। हाँ। मैंने वो देखा, बड़ा वाला लोहा लेके उसने जब दोनों बूट साइड में से डाला ना। दोनों साइड से कवर किया था, पीछे से भागे ना भाई वो। फिलहाल करा तो बड़ा ज़बरदस्त। तो भाई लोग आज है 26 ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे इंडिया में, और यहाँ पे हो रहा है, क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन डे है आज। और हम बस जिम के लिए निकल ही रहे थे कि हमने एक आवाज़ सुनी, मतलब मुझे लगा कि कोई कंगारू आ गया या कुछ हो गया। मतलब हम लोग बाहर गए तो देखा कि हमारे घर के सामने 2 पुलिस की गाड़ियाँ, उस टाइम तो गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ दूर खड़ी हुई थी, बट पुलिस वालों ने उनका सामने एक ब्रोथल था उसका दरवाज़ा तोड़ा और सीधे उनमें हमला कर दिया। और अभी शायद उनको अरेस्ट करेंगे और उसके बाद पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, जो भी प्रोसीजर है उनका। बाद में वो वापस गए, अपनी गाड़ी लेके वापस आए। जिस चीज़ से उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था उसको भी बूट में डाला। तो एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, मतलब कि कोई भी मतलब पुलिस के पास नहीं गया कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सबको पता ही था यहाँ पे जो ये एशियंस होते हैं ये करते हैं ऐसे काम, मतलब तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करा। क्यों, और इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एक लाइसेंस बनता है प्रॉपर ब्रोथल चलाने के लिए, बट ये लोग कुछ साइट्स में इलीगली मतलब ऑपरेट करते थे और वहाँ से ये लोग ये धंधा जो भी था घर पे चला रहे थे। तो आज ये लोग पकड़े गए यहाँ पर, सज़ा भी होगी, फाइन भी मिलेगा। अगर वो शायद जो ये होते हैं, ये विजिटर वीज़ा पे आते हैं ना, तो काम नहीं कर सकते, वो नहीं शायद डिपोर्ट भी करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आते हैं, कुछ लड़कियाँ, और वो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो फिर उनको फ़ाइन भी पड़ेगा, जेल भी होगी, उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। बड़ी जल्दी पकड़ लिया है, ज़्यादा चलने नहीं दिया, 2-3 महीने हुए। इस घर में रेड पड़ती रहती है, पहले भी पड़ी थी। हो सकता है, ये ख्याल हो रहा था पूरा। हमारे जो पड़ोसी हैं ये बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये बता रहे थे 2 साल पहले भी यहाँ रेड पड़ी थी, और उसके बाद फिर एक ये कुछ 4-5 महीनों से दोबारा यहाँ पे मतलब धंधा खुल गया, फिर यहाँ पे रेड पड़ी। तो इनकी भी अलग अलग कहानियाँ, ये भी काफ़ी परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों से। हालांकि वो पड़ोसी जो उसके थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे आज, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डे है, वो बियर पी के टाइट थे और कह रहा व्हाट्स गोइंग ऑन है। वो भी खुश हो गया, मतलब। और उसकी और कहानी सुनी, वो बता रहा था लास्ट टाइम एशियन पुलिस वाला आया था, कह रहा है वो कैसे लगते हैं, वो तो बोल रहे तुम्हारे जैसे लगते हैं पुलिस वालों से। हाँ, तो पुलिस वाला चिढ़ गया था उससे। दिक्कत ये है कि ये लोग ऑनर को नहीं पकड़ रहे हैं, जो मेन जेड है उसको पकड़ना, जो बंदा इनको जो घर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे घर मिलता है सारी इंक्वायरी करने के बाद आप यहाँ पे रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट इनको पकड़ा जाता है क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी कर रही है, बट ऑनर को नहीं पकड़ा जाता है, जिसका ये घर है ना। हाँ, जिसका घर है उसको नहीं पकड़ा पुलिस वालों ने अब तक। इनका बस एक फायदा था कि चोरी बंद हो गई थी इलाके में। हाँ, हमारे घर में ना मतलब इन सब चक्करों से आना जाना लगा रहता था लोगों का, तो चोरियाँ हमारे इस गली में होती रहती थी। इसके शीशा तोड़ के पैसे निकाल लिए थे 2-3 बार टैक्सी में शीशा तोड़ा और पैसे निकाल के चल दिए, $5-6 हज़ार निकाल लिए थे, मतलब 3-4 लाख रुपए इसके निकाल लिए थे इसने गाड़ी में रखा। वो निकाल लिया था, वो मेरे लोग करने भूल गया था, वो खोल के ले गया। इसकी छोटी गाड़ी थी, उसमें से मतलब बेसबॉल का डंडा भी ले गया था, वो भी उठा के ले गया। बेसबॉल का डंडा ले गया था, एयरपोर्ट ले गया चोरी करके। पर जब से यहाँ पे ये लड़कियों ने अपना धंधा ऑपरेट किया जो ब्रोथल, तब से यहाँ पे मतलब चोरियाँ कम हो गई, क्योंकि रात भर गाड़ी का आना जाना लगा रहता था, तो चोर मतलब डरते थे यहाँ पर आने में।
A few moments later. तो जब पुलिस वाले आए थे, मैं और मेरा दोस्त जिम के लिए रेडी हो रहे थे और अचानक से इन्होंने धावा बोल दिया। तो हमारे पड़ोसी भी आ गए थे और हम भी आ गए थे। हमने थोड़ी बहुत बात करी, उसके बाद हम जिम चले गए थे। जिम जाने के बाद जब वापस आए 2 घंटे के बाद, तो स्टिल ये लोग यहीं पर ही हैं। सो 2 गाड़ियाँ हैं, अराउंड 8 या 9 पुलिस वाले हैं। तो अभी तक इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनको अंदर बैठा के रखा है, जो कि मुझे बाहर से दिख रहा है। काफ़ी शॉकिंग है, मतलब कि, और किसी को कोई मतलब नहीं है। पूरी स्ट्रीट खाली है, यहाँ पे 10 पुलिस वाले हैं। इनके घर में मतलब धावा बोल रखा है। यही चीज़ अगर इंडिया में होती तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं वहाँ पे। पूरे गांव को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे मतलब पुलिस की रेड पड़ी है। पर यहाँ पे सच ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पूरी स्ट्रीट खाली है। आप देख सकते हैं, ये उस घर में रेड पड़ी है और कोई नहीं है। वो 2 पुलिस की गाड़ियाँ हैं, अंदर उनको बैठा रखा है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यही डिफरेंस है मतलब यहाँ के कल्चर में और इंडिया के कल्चर में। यहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं है। कोई अरेस्ट हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई मतलब नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई पड़ोसी उनका मर गया होता है और इनको 1-2 हफ्ते बाद पता चलता है कि हाँ भाई वो तो मतलब मर चुका है अंदर। 2.5 घंटे हो गए हैं और अभी तक इनकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई है। But next day they would be banging our doors. Let's go and ask like what happened. Why didn't you arrest someone? But the funny thing was, you noticed the car that drove down here. Yeah, they park it over there first, He parked just outside. and He from got there, out of his car. He must have spotted the cars here because he and I don't know if he saw anyone else, but he jumped back in the car and did a U-turn and took off. Who? Looks like he was a client. Oh, I reckon that's what it is. Might he have been was a client. he was so lucky. Otherwise, he could be Yeah, behind the he bar. saw- maybe he thought, whoops, not the place to go tonight. Oh, so he saw the police. Police were coming, and then he ran off. Yeah. Why the owner is not getting arrested? Well, I'm nearly going to ask that, and so was Craig, but that's what we kept saying. Whose house is this? Do you know the owner? Well, the last time they raided it, it was the Chinese owned it. Chinese owner. But the thing is that like he's always safe because he said like he just give it to the renters. Whatever they do, he don't have any knowledge of that. So he's always safe. Well, the cop did a bit of history on the house Yeah. because he came over and he knew what the previous owner Yeah. sold it for because he got a real top quality price for that house back. 10 years, 12 years, it was 870,000. 10 years before? For here. How is it possible? And you are Well, getting just Well, 800,000. these are only worth about 500. Your house. That time, That was at that time. And then how he got They that got- $800,000? Well, one is their block is bigger, longer, yeah, in the backyard, yeah. and Oh, okay, because of the land area. yeah, And how bit much? longer. How much our house price? that was well. How much he sold it for? Well, he got 720. He got 820. This was, but 650. it's only on a house. Right now they See- sold it 650. Yeah, well, that was big enough. But The that- guy wanted that to has drop a- it. He was the original guy. He was going to drop it and put on 3, like just down the road here. See what they've done down there. Got these 3 Units over there. big bloody $2. But I guess the reason why they bought it for 8,000 because there is a passive income they were getting. Well, that was they were bought across here at the same time. Oh, so the owner is and already they here. across the road. It was $600 a. That's the owner. His t-shirt is ripped off. He looks like a fucking white tie, doesn't he? He Hmm. looks like an Asian chap. उसको लग रहा T-shirt is ripped off. उसकी टी शर्ट फाड़ी गई है. His t-shirt. ये उसकी टी शर्ट फाड़ दी गई है. शायद वो उसको ले जा रहे हैं, गाड़ी में बैठा गए हैं. उसकी तो टी शर्ट भी फाड़ दी है भाई. Oh, well, that's how they got one. Yeah, they got it. That guy is arrested. ये ग्राहक आया था अभी और ये भाग रहा है पुलिस वालों को देखकर. भाग गया. वो देखो पुलिस यहाँ पे थी और वो भाग गया तुरंत. किस्मत देखो उसकी. पुलिस जा रही है. It's quite surprising they haven't arrested any woman here. She is still inside. Well, the surprising other one is too that they didn't check them for. I didn't see anyone like might be immigration check there. Hmm. Like you see on
Had that one The TV. the bloody- only the guy was police- arrested and the woman is still there. inside. Yeah, They checked their papers and and the guy looked like he was beaten by the police. You saw his T-shirt. You saw his T-shirt. very. Oops, there's another. Another customer. Go and park over there. Would you scare him? तू भी गया था ना यहाँ पे? Time for shit. You also went inside? You are a regular customer. तो तू बता तू यहाँ पे कितनी बार गया है? जल्दी बता मैं एक बार भी नहीं गया हूँ। तू पकड़ा जाएगा भाई। पुलिस आई थी यार, रेड पड़ी, मजाक नहीं कर खुश नसीबी है मेरी, एक बार भी नहीं गया हूँ मैं। रोजा ये स्टिकर कहाँ है यार? स्टिकर दो तो मेरे को। रहा। अरे ये अभी क्यों आ रही है? ये तो ऑलरेडी यहाँ पे वो हो रखा है, रेड पड़ी है। अच्छा अपनी गाड़ी लेने आती। मैं वो बना दिया होगा ना? हाँ पूरा ब्लॉग तैयार है मेरा। हाँ जी, तो दोस्तों उस दिन जो यहाँ पे बंदा पकड़ा गया वो एक ड्रग स्मगलर था और हमें इस घर में रहते हुए हो गए अराउंड 1 ईयर और आज तक हमें नहीं पता चल पाया कि यहाँ पे ड्रग की स्मगलिंग करी जा रही है। मुझे भी ये बात नहीं पता थी। मैंने अपने पड़ोसियों से थोड़ी जांच पड़ताल करी तो मुझे इन्होंने बताया कि वो बंदा अभी फ़िलहाल जेल में है, अभी उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और आई थिंक उसको जेल होगी और अगर वो यहाँ का नहीं हुआ तो उसको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्वाइट शॉकिंग है कि ये सब चीज़ें काफ़ी महीनों से चल रही थी और पुलिस को अभी पता चला। और हम सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत मतलब पुलिस स्ट्रिक्ट है बट इनका भी एक काम करने का तरीका होता है। बहुत स्लो ये भी काम करते हैं, ये भी कोई इतना तेज़ काम नहीं करते हैं। यहाँ पे गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं तो वो शायद आते भी नहीं हैं इन सब मामलों में, छोटे मोटे केस, क्योंकि ये प्रीटी नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे गाड़ियों के शीशे टूटना, गाड़ियों से पैसे निकाल लेना। और अगर आप बोलोगे कि चोर मेरे घर में घुस गया था तब ये स्ट्रिक्ट होते हैं, तब ये लोग मतलब तुरंत आ जाएंगे। या फिर नाइफ़, किसी के हाथ में मैंने नाइफ़ देखा तो मतलब 2 मिनट में पुलिस यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ड्रग्स भी बहुत बड़ा केस होता है यहाँ पर, तो आई थिंक वो लंबे टाइम के लिए तो अंदर जाएगा ही जाएगा। हालांकि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी वो अभी भी कंटिन्यू हैं, अभी भी यहाँ पे वो ब्रोथल चल रहा है, अभी भी लोग आते हैं, अभी भी जाते हैं। बट वो एक एक्सेप्शनल केस था, तो जो ड्रग का केस था इसलिए पुलिस थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई और उसको अरेस्ट करके ले गई। तो ऐसा सीन है। पुलिस मतलब थोड़ी सी ढीली है, उन्हें पता है कि ये लीगल एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पे लीगल बोतल चल रहा है, इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बट चल रहा है, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही और आपसे जल्द मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।